Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome to you all in your social science class. What will we are going to discuss in this video? We'll discuss about the quality of population in context of education. Through the last videos, we have studied the economic activities by men and women. In the first video, we have discussed how does the population of a country can be converted in asset from a liability by doing investment on human resources in the form of education and training. Now we are required to invest on humans in terms of education and health. Now today we'll discuss that on what factors the quality of population depends. Actually there are two factors, that they are literacy rate and health of a person. As you look at the first point, the quality of population depends upon the literacy rate, health of a person. The quality of the population ultimately decides the growth rate of country. It means we'll focus our discussion today, how do the education influence the quality of population. आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एजुकेशन जो है पॉपुलेशन की क्वालिटी को का इंडिकेटर है और कैसे ये बताता है कि किसी देश की पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है, यानी वो देश के लिए लाइबिलिटी है और एसेट है. ठीक है. Illiterate and unhealthy population are actually a liability for the economy. If the population is literate and educated, they will add to the development of the country. Now come to the next point. Importance of education in improving the quality of population. And we will deal it by relating it with the story of Sakal. As we have seen that after being educated, he contributed to the economy of the country. He means here Sakal. He contributed to the economy of the country and enhances the national income. क्योंकि सकल के पेरेंट्स ने ध्यान दिया, उसकी पेरेंटिंग अच्छी हुई और उसको एजुकेशन, हेल्थ केयर, सारी चीज़ों पे अटेंशन दिया गया, इसलिए वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए देश के डेवलपमेंट में उसने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया. ठीक है. He acted as a responsible citizen and became an asset for the country. So that we can say that therefore there is a special emphasis on providing education to the population. इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हमारी गवर्नमेंट एक एजुकेशन सेक्टर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करे, उसके ऊपर स्पेशल अटेंशन दे. ठीक है. नाउ वील सी दैट व्हाइल प्रोवाइडिंग एजुकेशन व्हाट और ऑन विच पॉइंट्स वी शुड फोकस. हमें अब ये देखना है कि वो कौन सी पॉइंट्स होंगे, वो कौन सी चीज़ें होंगी जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं कि दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द वेल एजुकेशन सिस्टम टू इट्स सिटीजन्स. तो वो कौन सी पॉइंट्स होंगे जिन पे फोकस करना ज़रूरी होगा. लुक एट द पॉइंट 1, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. It means education should be given to everyone and it should be retained. Retain means to be regular, continue. उसमें गैप्स नहीं आने चाहिए. ये नहीं कि क्लास 3rd 4th तक पढ़ा फिर छोड़ दिया. ठीक है, ये गैपिंग नहीं होनी चाहिए. दैट शुड बी रिटेन. एंड एलिमेंट्री मीन्स क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं, यानी वो एजुकेशन भी कैसा हो, क्वालिटी वाला हो. लिटरेट होना, देखिए लिटरेट होना इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि लिटरेट कैन रीड एंड राइट ओनली. जो अपना पढ़ना लिखना और बुक्स रीडिंग भी कर ले, किताबें पढ़ लिख ले, केवल वही आपको लगता है कि क्या वो देश के डेवलपमेंट में प्रॉपर कंट्रीब्यूशन उसका हमें मिल सकता है? नहीं. सो दैट दिस इज said that education should be given to everyone and it should be retained. It should be elementary education with emphasis on girls, यानी गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन पे भी बराबर का अटेंशन देना होगा. ठीक है. Once Gandhiji said that if you are educating a boy, you are educating him only
बट इफ़ यू आर एजुकेटिंग अ गर्ल, यू आर एजुकेटिंग अ फैमिली। एक बार गांधी जी ने ये कहा था, एग्जैक्टली स्टेटमेंट तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन फिर भी एक होल एंड सोल अगर बात करें तो वंस गांधी जी सेड कि अगर हम एक गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करते हैं तो वो पूरी फैमिली को एजुकेट करेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि बच्चों की को लुक आफ्टर करने की, उनकी केयरिंग की पूरी लाइबिलिटी कहीं ना कहीं एक लेडीज़ पे होती है। हमारे आपके घर परिवार में आपने सबने देखा होगा, ठीक है, उनके खाने पीने की चीज़ों का ध्यान देना, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ एक लेडी कर ले जाती है। बट इफ़ वी आर एजुकेटिंग अ बॉय, ऐसा नहीं है कि वो कुछ कम करते हैं देश की कंट्रीब्यूशन में, इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, बट दे कांट पे द प्रॉपर अटेंशन ऑन देयर चिल्ड्रन। उनमें वेल मैनर्स कैसे बनाएं, उनको प्रॉपर हेल्थ के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन फूड दे रहे हैं कि नहीं, वो टाइम से पढ़ने बैठे कि नहीं, इन सारी चीज़ों का ध्यान जितना अच्छा एक माँ दे सकती है, जितना अच्छा एक फीमेल दे सकती है, आई थिंक मेल, क्योंकि उनके पास आउटर फील्ड में वो काम करते हैं तो उतना कंसंट्रेट वो नहीं कर पाते। ठीक है, several programs has been launched by government like बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने हमारे लॉन्च किए हैं। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। अगर हम नवोदय विद्यालय की बात करते हैं एक्चुअली, तो आई थिंक हम में आप में से कोई शायद ही होगा जिसने कभी नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस दिया नहीं होगा। Actually, this was the first competitive exam which usually all students give. Model school like this has been set up where their quality education is being provided free of cost. Now come to the third point, that's vocational streams have been developed to equip large number of high schools students with occupation related to knowledge and skills. It means bookish knowledge is not sufficient, so that occupation related knowledge and trainings are given as to repair electrical appliances. देखिए, स्टूडेंट्स के लिए हम उनको एजुकेशन देने का मेन क्या होता है कि लाइफ में कहीं ना कहीं वो स्टैंड करें, सक्सेसफुल होकर के कहीं ना कहीं खड़े हों। ठीक है, देश के लिए भी काम करें, देश का भी डेवलपमेंट हो और उनका खुद का भी। इसीलिए केवल बुकिश नॉलेज दे देने से हम बोलते हैं इतने लोग बेरोजगार हैं, बीएड एमएड किया हुआ है, एमए किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, फिर भी पढ़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि केवल बुकिश नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, increase in expenditure from rupees 151 crore in the first plan to rupees 3766.90 crore in the 11th plan। आप देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने कितना कुछ किया। Considering the importance of education in the country, these steps has been taken by the government. In our first 5-year development plan, we have expended on education rupees 151 crore। अगर हम ध्यान दें, हमारी गवर्नमेंट ने पहली जो हमारी 5-year डेवलपमेंट प्लान, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उसमें 151 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था एजुकेशन पे। बट इफ़ यू कंपेयर इट विद द 11th 5-year प्लान, अगर आप इसको 11वीं पंचवर्षीय योजना से कंपेयर करते हो, व्हाट विल यू फाइंड, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, दैट वी हैव a lot we have looted, spent a lot, 3766.90 crore। आप देख लीजिए कहाँ 151 करोड़ और कहाँ ये ऑन एजुकेशन, विच शोज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एजुकेशन। ये शो करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हमारी गवर्नमेंट भी एजुकेशन सिस्टम को लेकर के सीरियस है और प्रॉपर अटेंशन दे रही है। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, the expenditure on education as a percentage of GDP raised from 0.64% in 1951 to 52 to 3.0% in 2015 to 2016. Actually, the share from GDP has been increased on education, but if we compare this share of GDP on education with a developed country, this is very low। हमारे जीडीपी का जो अगर एजुकेशन सेक्टर पे शेयर की अगर हम बात करते हैं, तो हालांकि हमने बहुत इम्प्रूव किया। आप देख लीजिए 52 में 1951 टू 52 हमारा कितना था, 3.0%, सॉरी 0.64% था, जो कि इंक्रीज होकर के कहाँ तक पहुँच गया, 3.0%। येट वी हैव डन अ लॉट।
बट वी आर वेरी फार अवे, अभी भी हम बहुत दूर हैं अपने गोल से, ठीक है। अभी भी डेवलप्ड कंट्री से अगर हम इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटेन इनकी बात करते हैं तो इनके यहाँ एजुकेशन और हेल्थ पे प्रॉपर अटेंशन है, इवन वहाँ वो फ्री फैसिलिटी है। तो अब भी हम काफ़ी दूर हैं। दे इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन 15% ऑफ देयर टोटल जीडीपी। उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना है एजुकेशन पे? पूरी जीडीपी का 15%। इट मीन्स विल हैव टू डू अ लॉट, अभी भी हमें बहुत कुछ करना है। नाउ what was the result of this expenditure done by the government? अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने जो इतना कुछ इन्वेस्ट किया, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो इतना कुछ इन्वेस्ट किया उसका आउटकम्स क्या था, उसका रिजल्ट क्या था, ठीक है। Actually, the literacy rate have increased from 18% in 1951 to 74% in 2010 to 2011। आप देख लो 1951 में जो 18% हमारी लिटरेसी रेट थी वो बढ़ करके 74% पे आ गई 2010-11 का तक। Now the second point, the primary school has expanded to over 8.58 lakhs. The primary school system has expanded to over 8.58 lakhs. It means this is a drastic change which tells us about the positive response of the steps taken by the government for education. Number of primary schools has been opened. If you look at the graph given in your book at the proportion of literacy rate of male and female, what you will find there, the male dominate always. हमेशा से ही अगर आप उस ग्राफ को देखोगे तो आपकी बुक में दिया भी हुआ है जहाँ पे ये दिखता है कि मेल जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। आज भी फैमिली में जहाँ पर पार्टी है तो अगर पेरेंट्स एजुकेट करना भी चाहते हैं तो मेंटलिटी क्या है, लड़कियों को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, आखिर उन्हें घर का काम करना है और शादी होकर के वो दूसरों के घर चली जाएंगी। हाँ, लड़का अगर कहीं कुछ करता है तो वो हमारे काम आएगा। कहीं ना कहीं ये एक मेंटलिटी आज भी है, हालांकि अब तो ये चीज़ें बहुत ही कम हो गई, लेकिन फिर भी येट दिस इज़ still this problem is still in especially in rural areas. However, this gap now reduce, हालांकि अब ये गैप जो है वो काफ़ी कम हो गया है। चैलेंजेस की बात करते हैं अगर हम, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या बाधाएं हैं। वास्ट डिफरेंस इन लिटरेसी इज नोटिस्ड across different sections of the population. Even the government took several steps to increase the result and we have received positive response also, yet there are some of the challenges. First point की अगर आप बात करते हो, in spite of doing so much investment on education by the government, there is great difference if we notice the proportion of male and female. The literacy rate has been increased from 18% to 74%, but the gap between them is still can be seen. Now come to the next point. Huge expansion of school has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rate. It means we are not required to have number of schools. What are the requires to have quality education? यानी जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग स्कूल अभी भी कम है और हमें नंबर ऑफ़ स्कूल सेटअप्स करने की और वो स्कूल्स कैसे हों जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हों, इसकी अभी बहुत ज़रूरत है, अभी भी हमें इस पे काम करना है। These are the challenges that the education system is still facing, and this is true that quality of population would directly enhance with the improvement of education system. अगर हम education system पर काम करते हैं तो हमारी quality जो है population की वो अपने आप बढ़ जाएगी। But what we need today to overcome all the challenges, some more steps has been taken by the government, like सर्व शिक्षा अभियान। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं। अगर हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। स्टेप्स टुवर्ड्स providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010. We have targeted to provide primary education to the children up to 14 years. It means we have
टारगेटेड टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन, यानी 14 साल तक के बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने ये हमारे यहाँ एक ये प्रावधान रखा है कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए। गवर्नमेंट स्कूल में ये सारी फैसिलिटीज़ आज भी हैं। नाउ, initiative of the central government in partnership with the states and local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education. It means the central government initiative has been taken in partnership with local and state government. हमारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के साथ मिल कर के पार्टनरशिप में काफ़ी कुछ काम किया भी है। और ऐसा क्यों? so that an inclusive program can be started to provide the basic education to everyone, ताकि बड़े पैमाने पर एजुकेशन सबको प्रोवाइड कराया जा सके। Now, the next point is bridge courses and back to school camps has been initiated to increase the enrollment in elementary education. Bridge courses क्या हैं? Actually, these are designed to give children opportunity to take informal classes or to maintain the gaps of education. कई लोग ऐसे थे जिन्हें बीच में मजबूरन अपनी पढ़ाइयाँ छोड़नी पड़ी भी होंगी, या आज भी ऐसा है। ठीक है, तो इस गैप को एक ब्रिज कोर्स के माध्यम से, ठीक है, एक इनफॉर्मल क्लासेस चला के, आपने देखा होगा कई बार शाम को गांव में पढ़ाई कराते हैं लोग, और मतलब गांव के जो एजेड लोग हैं वो भी जाकर के क्लास अटेंड करते हैं। ठीक है, तो बैक टू स्कूल इज़ ऑल्सो अ गुड इनिशिएटिव। अच्छा एफर्ट था गवर्नमेंट का, अच्छा एक प्रयास रहा है गवर्नमेंट का, और काफ़ी हद तक सक्सेस भी रहा। वन मोर एफर्ट टेकन बाय द गवर्नमेंट इज़ मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम भी हमारी काफ़ी सक्सेस रही। One time meal is provided in the school. The children of poor family attract and come to school. This was really successful. And in this way, these are some of the initiatives taken by the government to improve the quality of population via education. गांव में इतनी पावर्टी है, इतनी गरीबी है कि कम से कम एक टाइम खाने मिलने के ही लालच में सही बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, और ये काफ़ी सक्सेसफुल काफ़ी हद तक रहा। हालांकि कुछ इश्यूज़ भी बने, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि दैट मिड डे मील स्कीम इज़ टोटली सक्सेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। 12th प्लान endeavored to increase the gross enrollment ratio, GER। आपसे एग्जाम में एब्रिविएशन भी पूछ सकता है। इसका मतलब है to increase gross enrollment ratio means to increase the share of higher education in the country. Now, the next point, in higher education in the age group of 18 to 23 years to 25.2% by 2017 to 18, and to reach the target of 30% by 2020 to 21. It means that our target is to increase the GER, यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को हमें इन्हेंस करना है, इंक्रीज़ करना है ऑफ हायर और यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्रॉम 25.2% to 30% by 2020 to 21. Because only increase in literacy rate is not our goal, because a literate is one who can read and write, but that is not the quality education. एक वो आदमी, वो बंदा जो कि किताबों को पढ़ ले, न्यूज़पेपर पढ़ ले, वो लिटरेट तो ज़रूर कहा जाएगा, लेकिन केवल लिटरेसी रेट बढ़ा लेना ही हमारा टारगेट नहीं होगा। हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है, क्योंकि केवल लिटरेट हो जाने से हम देश के डेवलपमेंट में या खुद के डेवलपमेंट में कहीं कुछ खास नहीं कर पाएंगे। Now, the next point is the strategy focuses on increasing accesses, quality adoption of states, specific curriculum modification, vocationalization, and networking on the use of information technology. It means the government focus that the school should be access to children easily. बच्चों के आसपास स्कूल हो ताकि वो इजीली पहुंच पाएँ। अगर बहुत डिस्टेंस होगा, गांव से दूरियां बहुत होंगी, रूरल एरियाज़ में स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है, या फिर पहाड़ी जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर स्कूल बहुत दूर है, ठीक है, तो ऐसे में बच्चे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। इसलिए मेन फोकस क्या है, दैट स्कूल शुड बी एक्सेस टू चिल्ड्रन ईजिली।
And the next thing is quality education should be provided to them according to the need of states. A specific curriculum as the children of Madras should have the education according to his state board or universities. स्टेट बोर्ड्स की भी कुछ अपनी स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, तो उनको ये थोड़ा फ्री किया भी गया है जिसके अकॉर्डिंग वो एजुकेशन सिस्टम में अपनी अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस ला सकते हैं. The government should provide them not only the bookish knowledge but they should receive the vocational trainings also. बच्चों को कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग्स, कुछ ऐसी स्किल बनाने वाली कुछ ट्रेनिंग, कुछ टेक्नोलॉजी की भी ट्रेनिंग दिया जाना ज़रूरी है. Now next, the plan also focuses on distance education, convergence of formal, non-formal distance and IT education institutions. It means distance education means one can continue his education with his work. मतलब एक आदमी अपना जो रोज का रोजगार है वो करने के साथ, हो सकता है कहीं बहुत पावर्टी है, गरीबी है, साइड में जॉब भी कर रहा है और साथ में एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर सके, इसलिए डिस्टेंस एजुकेशन की बात की गई. मीन्स द ओपन और करस्पॉन्डेंट एजुकेशन की बात हम करते हैं. करस्पॉन्डेंट यानी जैसे आपका एक बेस्ट एग्जाम्पल है इग्नू. फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड IT इंस्टीट्यूशन शुड बी प्रोवाइडेड टू देम. नाउ the next point is there has been significant changes. There has been a significant growth in the number of university and institution of higher learning education, of higher learning in special areas. It means an infrastructure is developed so that anyhow in any condition students should get access to education. There are increase in number of universities and institutions that provide some specific knowledge to the student. यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई गई क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो कंटिन्यू बढ़ रही है, और स्पेसिफिक नॉलेज और ट्रेनिंग देने वाले कॉलेजेस, IT सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे IT कॉलेजेस की भी इंस्टीट्यूशंस की भी स्थापना भारत में की गई है. In this way, I think this is clear to you that what are the steps taken by the government to increase the standard of education. मैंने आपको वो सब कुछ बताया जो गवर्नमेंट ने किया है और मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया होगा. ठीक है. Now what are its results and what are the challenges? In the next video, we'll see that how can we improve the quality of population through health. नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इंडिकेटर की बात करेंगे जो होगा हेल्थ से रिलेटेड. We will discuss about the quality of population in context of health. Till then, stay connected, keep learning, and if you are having any doubt, please ask the question. And yes, don't forget to share and subscribe my channel and also click on the bell icon to get notification of my upcoming videos. Thank you for today. Jai Hind. Goodbye.